Hello student, welcome to online study of Asadeep International School. Our subject is Science Class 7. Chapter number 3, Fiber to Fabric. Session 2. In session 1, we have learned different varieties of fiber obtained from animals, wool and silk. So wool are obtained from goat, sheep, different areas, camels, yak, angora goat, llama, alpaca, and then we have a learn selective breeding process and processing fiber into wool. So in this session, we have a learn silk. Session 1 we have a learn a shearing process, scoring, sorting, cleaning of birds, rolling and dyeing. This is the processing of fiber into wool. Second one, silk. Silk fiber are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called a sericulture. सिल्कवॉर्म को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसको रियर किया जाता है और उसमें से सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. Before we discuss the process of obtaining silk, it is a necessary note to the interesting life history of silk moth. Life history of silk moth. The female silk moth lays egg from which hatch larvae, which are called caterpillar or silkworm. They grow in size when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa. मेल और फीमेल जो सिल्क मोथ होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उसमें से जो नेक्स्ट स्टेज है, कैटरपिलर रेडी हो गया, बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सा है, प्यूपा. इट्स फर्स्ट, ये जो एग है, एग में से उसका जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है, लार्वा. एंड देन लार्वा में से लार्वा है वो क्या है, सिल्कवॉर्म, कैटरपिलर है. कैटरपिलर में से उसके नेक्स्ट स्टेज में वो एंटर होता है, वो कौन सा है, प्यूपा. मीन्स आउटर कवर जैसा हमें दिखाई देता है. इट फर्स्ट वीव्स टू नेक्स्ट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फॉर्म द फिगर ऑफ 8. कैसी फिगर दिखाई देती है कि उसमें जो लार्वा में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हेड से लेके टेल तक उसमें 8 ऐसे क्या दिखाई देते हैं, साइड में स्विंग दिखाई देते हैं. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड एंड कैटरपिलर secrete fiber made of a protein which harden when exposed to air and become silk fiber. So the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turn into pupa. यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कंप्लीटली सिल्क फाइबर, जो प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं उससे कैटरपिलर बॉडी को कवर कर लेता है. तो कौन सा स्टेज है, प्यूपा. दिस कवरिंग इज नॉन एज अ ककून. The further development of the pupa into moth continue inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth. Can we imagine that the soft silk yarn is as strong as a compact thread of steel? Yes, जो भी सॉफ्ट सिल्क होता है, सिल्क का जो यार्न होता है
वो कंपेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग होता है. लेट्स इन दिस लाइफ साइकिल, फर्स्ट ऑफ ऑल एग, सेकंड लार्वा, थर्ड स्टेप कौन सा है? प्यूपा, डेवलपिंग मोथ एंड लास्ट में बटरफ्लाई जो एडल्ट. Silk yarn is obtained from cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth is look very different from one another and silk yarn they yield to different in texture. Some shiny होते हैं, some smooth होते हैं, rough होते हैं. So tussar silk, muga silk, kusa silk. This is a varieties of silk are obtained from cocoons spun by the different type of moth. किस पे डिपेंड करता है? सिल्क मोथ पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा टेक्सचर है सिल्क का, स्मूथ है, शाइनी है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज अ मलबेरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of silk moth is a soft, lustrous, elastic and can be dyed in a beautiful color. मोस्टली जो सिल्क है वो कैसे टेक्सचर में से प्रिपेयर होता है? मलबेरी सिल्क मोथ में से जो सिल्क प्रिपेयर होता है वो सॉफ्ट भी होता है, लस्टरियस भी होता है, इलास्टिक होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर से उसको टाई किया जाता है. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूस plenty of silk on a commercial scale. ये जो प्रोसेस है वो ओल्ड है. In India, women are involved in various kind of industries related to silk production. This is rearing of silkworm, reeling of silk from cocoon and processing of raw silk into fabric by their enterprise. They contribute to the nation's economy. China lead to world in the silk production. India also rank among the leading the सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. चाइना है वो फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में, बट इंडिया भी रैंक में ही है अनदर कंट्री के कंपेयर में. इंडिया में भी क्या होता है? सिल्क का प्रोडक्शन होता है. सो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क है. तो हमें हमारे एल्डर्स, हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी होते हैं उससे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क की हमें क्या करनी है? आइडेंटिफाई करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है. डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के जो पीस होते हैं उसको कलेक्ट करके हमें उसका टेक्सचर है वो स्टडी करना है. और वो जो सिल्क है वो आर्टिफिशियल है, आई मीन सिंथेटिक है या तो प्योर सिल्क है, वो भी हमें फाइनली आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे किया जाता है? जो डिफरेंट डिफरेंट टू हमें आर्टिफिशियल थ्रेड एंड प्योर सिल्क के जो थ्रेड्स है उसको टैग करने हैं, बाद में उसको केयरफुली बर्न करने हैं. दोनों बर्न होगी उस टाइम स्मेल आएगी. आर्टिफिशियल सिल्क होगा तो उसमें डिफरेंट स्मेल आएगी एंड प्योर सिल्क होगा तो उसमें भी डिफरेंट स्मेल आएगी. तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि जो सिल्क है वो आर्टिफिशियल है या प्योर है. बिकॉज आर्टिफिशियल होगा वो उसमें केमिकल्स का मिक्सचर होगा और जो प्योर होगा उसमें कोई केमिकल्स का मिक्सचर नहीं होगा. From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get a silk thread. Rearing silkworm.
द फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट टाइम। एक ही टाइम में वो 100 एग है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दिस एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड शॉल्ट सिल्कवॉर्म फार्मर। जो सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, वो जब फीमेल सिल्क मोथ है वो एग को रिलीज करते हैं, उस टाइम क्लॉथ या पेपर में उसको प्रॉपरली केयरफुली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जहाँ पे सिल्क वॉर्म का प्रॉपरली बिजनेस हो रहा है, वहाँ के फार्मर को पता होता है कि कौन सी कंडीशन में, कौन सी सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में उसको रखा जाता है, वहाँ पे वो एग को रख देते हैं। एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। जैसे वार्म्थ कंडीशन होगी उसमें स्पीड से एग में से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा में। दिस इज डन व्हेन अ मलबेरी ट्रीज bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworm eat day and night and increase enormously in size. ये जो लार्वा हमने देखा वो डे और नाइट मलबेरी के ट्री के लीव्स के ऊपर रह के डे नाइट वो क्या करता रहता है, खाता ही रहता है, और उसकी साइज है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in tray to spin cocoon. 25 to 30 days कंटिन्यू खाना खा के बाद में उसका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और बाद में क्या बन जाता है, पूरा कवर हो जाता है बॉडी। स्मॉल racks may be provided in the trays to which cocoon get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth. जो आउटर कवरिंग होता है उसके इनसाइड ही उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। A pile of cocoon is used to obtaining silk fibers. The cocoon are kept under the sun and boiled or exposed to steam. उसको हॉट कंडीशन में या तो सन की प्रेजेंट में या तो बॉईल करके उसमें से उसका जो थ्रेड है, स्टेम है, उसको निकाला जाता है। The silk fibers separate out. The processing of taking out thread from the cocoon for use as silk is called a reeling of silk. cocoon होता है उसको हॉट कंडीशन में रख के या तो बॉईल करके उसके फाइबर से उसको सेपरेट किया जाता है। जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। Nowadays mostly use a machine which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into the silk thread which are woven into silk cloth by weavers. Accidentally the cocoon drop into the cup of tea and tangle the delicate thread separate from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for 100 of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called a silk route. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क की इंडस्ट्री कहाँ पे थी, चाइना में। बाद में ट्रैवल होके सिल्क है वो डिफरेंट कंट्रीज में प्रोड्यूस
होने लगा। थैंक यू। कंप्लीट दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। We have learned two different varieties of fabric, wool and silk. Wool obtained from different animal like goat, sheep, camel, yak, and silk are obtained in from to silk moth.